Okay, so now in this lecture we are going to discuss conservation of momentum. In this Newton's second law of motion, we extensively discussed what you mean by momentum. So can you tell me what is momentum? Any object that possesses both mass and velocity has momentum. And the product of the mass and velocity is known as momentum. So now in this lecture we are basically going to discuss about the conservation of momentum. Conservation means, you just tell me what do you mean by conservation? So conservation means when the sum of momenta. Just what is conservation? What is conservation? Conservation means which is conserved, जो कि खत्म नहीं हुआ है, जो पहले था वो अभी भी है, बट हो सकता है in other form. Like energy is conserved, it cannot be created, it can neither be created nor be destroyed because energy is conserved, but it has a different form. ये light energy है, kinetic energy, potential energy, mechanical energy क्या होती है? It is a sum up of kinetic and potential energy. We will discuss in the chapter work energy power. तो kinetic energy power potential में change होती है, potential kinetic में change होती है, but the sum is always same, constant. That is conservation. तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. This is one of the most important topic which you should be aware. You should be aware with the concept of conservation of momentum. तो इसका मतलब मोमेंटम को भी हम कंजर्व कर सकते हैं जैसे एक एनर्जी कंजर्व होती है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी. सबसे पहले व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक केस जिसके अंदर ये एक बॉल है मास m1 की और ये बॉल एक मास है m2 की. ये बॉल मास m1 है. आ रहे हो तुम भी ट्राई टू लिसन इट. ओके. एंड थोड़ा सा उसको जूम करके कैप्चर करना. मास m1 है, मास m2 है. मान लो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u1 u2. ठीक है. क्या है? u1 and u2. एक स्टेज आती है when both the masses come close to each other and they collide. This is a collision stage. This is a ओके. अभी समझ में आ रहा है? ये हमारी क्या है? इनिशियल स्टेज है और ये मेरी क्या है? कोलिजन स्टेज है. फिर एक स्टेज आएगी जिसके अंदर ये आफ्टर कोलिजन अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे एंड दे विल मूव विद सम डिफरेंट वेलोसिटी. लेट अस सपोज v1 and v2 are the velocities of the masses m1 and m2. Are you clear with these three diagrams? सर हमारा डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना चाहते हैं. We are supposing, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब इधर देखो ध्यान से. If I say u1 should be greater than u2, then am I right? u1 should be greater than u2. जो u1 है it should be greater than u2. ये क्या सही बात है? तभी तो कोलाइड करेगा. अगर u1 is not greater than u2, then the objects are not going to collide, obviously. So to make collision, we are assuming, okay. So we are assuming that the velocity u1 is greater than u2. Okay. Now, Avni, can you tell me what is the initial momentum? This is my system. This is my system. Do you know the meaning of system? Like I am considering this as one system. I am considering this as one system. So Avni, can you tell me what is the momentum of this system? हाँ. m1 u1 plus m2 m1 u1 plus m2 u2. plus m2 u2. Okay. Likewise, Jia, can you tell me what is the momentum of this final system? This is my final stage. what is थोड़ा सा zoom करना उसको अच्छे से. Just tell me what is the final momentum of this? m1 v1 minus m1 v2. m1 v1 plus m2 v2.
प्लस माइनस no. सॉरी, ये हो गया हमारा फाइनल। तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या बोलता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस यू हैव टू डन कि जो मेरा मोमेंटम था इनिशियली, द सिस्टम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली वाज m1 u1 प्लस m2 u2 and the final momentum was m1 v1 plus m2 v2। इन दोनों का सम अप अगर करते हैं तो we will get the same answer, that is conservation of momentum। now we are proceeding towards the proof। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसका प्रूफ सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वी स्टडीड दैट। अब इसमें क्या होगा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये क्या करेगी, ये फोर्स मारेगी, फोर्स ए बी। फोर्स ए बी मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, दैट इज फोर्स ए बी। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर ये एक फोर्स मार रही है बी पर, तो बी भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी ए पर। उसको हाईलाइट करो, आगे हाईलाइट दिस ड्राइंग। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज FAB, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज FBA, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फोर्स AB should be equal to minus force BA। Jia, can you tell me why this minus has been used? Yes sir, because Why? when we go outside, sir, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई हुआ है AB से। अब नहीं तो बताओ। So क्योंकि every action has an equal and तो opposite reaction. I can write FAB is equal to FBA। I can write Opposite. opposite, and it is a vector quantity, so you have to take the direction into consideration। Force is a vector quantity। If I am assuming this as a positive, if I am assuming right side as positive direction, then left side will be negative direction। सही है बात। सो अगर FAB पॉजिटिव है तो FBA क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आप लोगों का डेरिवेशन बहुत इजी होने वाला है। इस साल तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, नो इश्यूज, नो डेरिवेशन इज गोइंग टू कम, बट from the next year again it is going to be subjective, so this video will help you in the future exams जो upcoming next year जो पढ़ेंगे। plus this derivation include many things, so derivation करना बहुत जरूरी होता है, उसकी हेल्प से आप लोगों को बहुत चीजें सीखने को भी मिलती है। ओके, अब इसके बाद हम लोग लाइक लेट इट बी ड्रॉन लाइक दिस। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। FAB is equal to minus FBA। Okay, now what is FAB? फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए फोर्स एक्सर्टेड, देखो ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से हाईलाइट करो। फोर्स जो ए बी पे मार रहा है वो वही तो फोर्स होगा जो ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। भाई ए के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है वही तो ए वाला ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बॉडी ए। ट्रू। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बॉडी ए? पहले वेलोसिटी u1 थी, बाद में वेलोसिटी v1 हो गई। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? V1 minus U1. मास ma v1 minus u1 upon t। is it fine to you? is it fine to you? okay, इसको VA चलो V1 U1 लिया तो हमने V1 U। Now it is equal to minus। Jia, can you tell me what is the force exerted by the B on A? B on A क्या करेगा? बताओ मुझे फर्स्ट। सर B और A U1 minus A। ठीक से बोलो ना, फोर्स प्रोड्यूस बाय B क्या होगा? सर समझ नहीं
कोई भी तुम अगर फोर्स प्रोड्यूस कर रही हो तो वो किसके बराबर होगा, जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो अगर बॉडी बी प्रोड्यूस कर रही है फोर्स, तो ये जो बॉडी है इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। हाँ। पहले किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ये, u2, बाद में क्या हो गया v2, तो व्हाट इज द चेंज, V2 Sir. minus U2. V2 मास इनटू V2 minus U2 upon dt. टाइम इंटरवल सेम लेंगे हम, सही है। अब कोई डाउट है क्या जी, अब इसको फोकस करना पड़ेगा। क्लियर, नाउ टी कैंसिल, ओपन करो, एम ए वी वन माइनस एम ए यू वन इज इक्वल टू माइनस एम बी वी टू प्लस एम बी यू टू। ओके, एम ए वी वन प्लस एम बी वी टू इज इक्वल टू एम बी यू वन प्लस एम बी यू टू, सॉरी एम ए वी वन प्लस एम बी वी टू। हाँ ठीक है, सही है, सही है। हाँ. ओके, डू वन थिंग, लाइक यू कैन राइट एम ए को m1 कर दूं, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाएगा, m1 कर लो, m1 जस्ट डू m1 m1, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख लो f12 इज इक्वल टू माइनस f21। सॉरी टू चेंज द वर्डिंग्स, जो नोटेशंस हैं, द बॉडी A is we are representing by 1 and body B we are representing by 2, so UA U1 मतलब सेम होगा, MA M1 मतलब सेम होगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, MB की जगह मैं M2 कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ में कुछ वही लिखा था। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 U2, आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. तो फाइनली M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M2 U1 प्लस M1 Sir, M1 U1. M1 U1 M1 M1 U1 ये सॉरी M1 U1 plus M2. प्लस M2, ये गलत हो रहा था, ठीक है। So finally we proved it that this is my initial momentum and this is my final momentum. So after transposing m1 v1 ये रहा, m2 v2 यहाँ पर आ गया is equal to m2 u2 ये रहा, m1 u1 को मैं यहाँ ले गया। So initially मैंने ये बताया था m1 u1 plus m2 u2, याद है? और फाइनली मैंने क्या बताया था m1 v1 plus v2। So therefore initial momentum is equal to final momentum, hence so finally we have proved it, the conservation of momentum, and the video is limited to the topic of conservation of momentum only. So I hope the concept of conservation of momentum is clear to you. This is one of the most important topic in your chapter because many numericals will be asked from this conservation of momentum. So please watch it very carefully and make the notes. Thank you so much.